Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel and for registering the course. इस वीडियो में हम CSET मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स करेंगे। 3 ईयर के पेपर्स दैट इज 21, 22, 23 पास्ट 3 इयर्स पेपर्स वो अलग से बनाए गए हैं और बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अदर वीडियोस में हैं जो कि टॉपिक बेस्ड हैं। 10th एंड 12th क्लास के वीडियोस भी बनाए गए हैं मैथ्स के, तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का वहां भी आप वीडियो देख सकते हैं। So a few formula and examples. Probability of an event is equal to favorable events upon total number of events, which is NE upon NS. S is sample space, can be written M upon N, where N are mutually exclusive and equally likely elementary events, in which M elementary events are favorable to a particular event E. So this is the definition. Just to understand, we will be focusing more on questions. Complement of an event is PA bar is equal to 1 minus PA. P is denoting probability of A bar, means complement of A, and PA plus PA bar is equal to 1. We know that total probability is equal to 1. So mutually exclusive and equally likely, these two terms are very important for this definition, because if the two events are not equally likely, then we cannot find the probability. Non-occurrence of the event is A bar, that is complement of an event. Addition rule for probability: when two events A and B are mutually exclusive, the probability that A or B will occur is the sum of probability of each event. So mutually exclusive means they are not depending on each other. Happening of one is not affecting happening of other. So we can take out a coin from a set of coins and we are putting that coin back, and then again we are taking one coin. So both events are mutually exclusive, that first is not affecting the second one. So PA or B is equal to PA plus PB, and we OR is denoted by union. So always remember, AND is intersection and OR is union. So PA union B is equal to PA plus PB. This is the formula, same formula. When A and B are non-mutually exclusive, then the probability that A or B will occur is PA or B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. PA union B, or is union, is equal to PA plus PB minus PA intersection or PA and B. When they are not mutually exclusive, then this formula will be used, and when mutually exclusive, PA intersection B will be 0. So PA union B is equal to PA plus PB in the case of mutually exclusive. Odds of an event is M favorable outcomes, N unfavorable. So odds in favor of the event is M upon N, and odds against the event is N upon M. Probability of happening of an event is M upon M plus N, and probability of not happening of an event is, because N are unfavorable, so N upon M. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स डेफिनेशन है, 2 or more events are said to be independent events if the happening or non-happening of one event does not depend or not affected on the happening or non-happening of any other event, otherwise they are called dependent events. तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लीजिए हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं, तो दूसरी बार जब कॉइन थ्रो करते हैं तो पहले कॉइन का क्या रिजल्ट रहा ये नहीं इफेक्ट होता दूसरे कॉइन पर, मींस दूसरा कॉइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट कॉइन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ हमने लिखा है कि कार्ड ड्रॉ किया जाता है पैक ऑफ कार्ड में से और उससे रिप्लेस कर दिया जाता है बिफोर ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, तो पैक सेम हो गया। अगर हम अगला कार्ड ड्रॉ करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेकंड कार्ड के ड्रॉ पे, लेकिन अगर हम उससे रिप्लेस नहीं करते हैं, नॉट रिप्लेस्ड, तो सेकंड कार्ड का जो ड्रॉ हम कर रहे हैं वो डिपेंडेंट होगा फर्स्ट कार्ड पे, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं। मतलब कि पहला जो इवेंट है या ट्रायल है उसका इफेक्ट सेकंड ट्रायल पर या सेकंड इवेंट पर हो रहा है तो वो डिपेंडेंट है, अगर नहीं हो रहा है तो इंडिपेंडेंट है।
तो मान लीजिए E1 E2 दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होगी P1 E1 इंटू P2 E2, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये मतलब डिपेंडेंट इवेंट्स हो गई, तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी क्योंकि पहली पर डिपेंड कर रहा है सेकंड इवेंट। तो P ऑफ E2 सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जबकि पहली हो चुकी है, तो PE2 अपॉन E1 इज इक्वल टू PE2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन PE1। तो ये तो हमें नोन है, ऑलरेडी हो चुकी है। इससे हम n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नंबर के फॉर्म में n E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन n E1। तो अब कुछ डेफिनेशंस हैं और उन्हें रिवाइज कर लेते हैं, दूसरे वीडियोस में दिए गए हैं। आप सभी वीडियोस देखें तभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, बिकॉज ईच इज हैविंग डिफरेंट मैटर। सिंपल इवेंट, एन इवेंट विच कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। तो जैसे कि हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं, उससे हम और फर्दर छोटा नहीं कर सकते, तो एक कॉइन के थ्रो को हम सिंपल इवेंट कहेंगे, या एक डाई को थ्रो करते हैं तो वो भी सिंपल इवेंट होगी। लेकिन अगर हम दो डाई साथ में थ्रो करते हैं तो वो कंपाउंड इवेंट होगी, और उसे हम एक सिंगल डाई के थ्रो में चेंज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तो उस केस में वो रिड्यूस किया गया सिंपल इवेंट में। द सेट ऑफ ऑल सिंपल इवेंट्स इन ए ट्रायल इज कॉल्ड ए सैंपल स्पेस। तो जैसे कि अगर हम कॉइन का देखें तो 2 टू द पावर n होता है जितनी बार कॉइन हमने थ्रो किया, क्योंकि हेड टेल आएगा। तो पहली बार किया तो हेड टेल आया तो 2 हुए सैंपल स्पेस में एलिमेंट, 2 बार कॉइन किया तो 4 हुए हेड टेल, तो 2 स्क्वायर 4। इसी तरह अगर हम कंपाउंड इवेंट्स में देखते हैं, तो जैसे हमने डाई थ्रो की तो 6 टू द पावर 1 एक बार की, वो सिंपल इवेंट हो गया। 6 एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6। 2 बार की तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 6 आउटकम्स हैं, और 2 बार की स्क्वायर मीन्स 36 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से होगा, क्योंकि दो हम थ्रो कर रहे हैं, पहली डाई पर 1 आया और दूसरी डाई पर 1 2 3 4 5 6 कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वैल्यू हो सकती है। तो दैट विल बी 36 सैंपल स्पेस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ और जानते हैं। हमने जैसे कहा कि ये मेजर करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन दैट अनदर इवेंट हैज अकर्ड। तो E1 E2 दो ली हमने सैंपल स्पेस एस लिया, E2 अकर होती है जबकि E1 का अकरेंस हो चुका है, तो E2 अपॉन E1 हम कहेंगे इसको, और इसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट करेंगे PE2 अपॉन E1। तो यहाँ पर हमने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो पीछे दी थी वही दी है। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 टू द पावर n सैंपल स्पेस है, जब हम डाई को करते हैं तो 6 टू द पावर n है। तो कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे कि इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स होंगी जहां पर इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, और जैसे कि डाई के केस में 1 2 3 4 5 6 सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस अगर फेयर डाई है। और एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो सेट ऑफ इवेंट्स is said to be exhaustive if one of them must necessarily happen every time the experiment is performed। तो जैसे कि अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो डाई में 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक साइड आ सकती है, तो इसका जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सेट है वो 6 वैल्यूज होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5। सो देयर आर 6 एग्जॉस्टिव इवेंट्स और एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आप कह सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होती हैं इफ द अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ द इवेंट्स इन द ट्रायल प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ द अदर, देन द इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जैसे कि 1 आ गया डाई पर तो 2 3 4 5 6 को रोकता है, वो नहीं आएंगे, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एक समय में ये दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है, एंड दिस इज हैपनिंग, 1 इज हैपनिंग, देन 2 3 4 5 6 आर नॉट हैपनिंग। और क्लासिकल डेफिनेशन तो हमने प्रोबेबिलिटी की पढ़ी है, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो NE अपॉन NS हम लिखते हैं इसको।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट भी हमने पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट होता है जब नॉन अक्रेंस ऑफ एन इवेंट होता है, मीन्स हम इसे पी ए बार से लिखते हैं और पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ये सब दूसरे वीडियो में डिस्कस किया गया है, विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी ए बार एंड टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। एंड हमने एडिशन रूल भी पढ़ा है। एडिशन रूल होता है पी ए और बी इज पी ए प्लस पी बी, और इसे हम यूनियन से लिखते हैं पी ए यूनियन बी विच इज पी ए प्लस पी बी। और रूल होता है पी ए और बी विच इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होता है। पहला जब हमने कहा जब इंटरसेक्शन वाली टर्म 0 है तब वो एक्सक्लूसिव के लिए, तो हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए लिखते हैं पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होता है। अगर हम कहें ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट, तब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। और अगर हम कहें ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट, तब होता है नंबर ऑफ अनफेवरेबल outcomes upon number of favorable outcomes. Example है ये 2008 का। There are 6 different letters and 6 correspondingly addressed envelopes. If the letters are randomly put in the envelopes, then what is the probability that exactly 5 letters correctly go into correctly addressed envelope? 0, 1 by 6, 1 by 2, 5 by 6. तो अगर 5 करेक्टली चले गए तो ऑब्वियसली 6 तो करेक्टली जाएगा ही। देयर इज नो अल्टरनेट बिकॉज जो लास्ट बचा है वो लास्ट करेक्ट में ही जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 5 लेटर्स करेक्टली गो इनटू करेक्टली एड्रेस्ड एनवेलप्स, क्योंकि एक गलत हो गया तो ऑब्वियसली गलत होंगे। और यहाँ कहा जा रहा है what is the probability that exactly 5 letters correctly go into correctly addressed envelope? 5 गए तो 6 ऑलरेडी जाएगा ही, एंड रेंडमली पुट में तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही है। जब 5 सही जाते हैं तो छठा भी जाएगा करेक्टली, तो वो 1 केस ही हो सकता है, 1 पॉसिबिलिटी ही है जब 6 के 6 करेक्टली जाए। लेकिन यहाँ 1 तो कोई नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि ये 5 भी रेंडमली में करेक्ट नहीं जाएंगे। इट कैन नॉट बी 1 by 6, 1 by 2, 5 by 6। अगर 5 सही गए, छठा भी 6 सही गया, तो प्रोबेबिलिटी इज 100%। सो फ्रॉम द आंसर्स वी कैन से इट इज 0 because it is not possible to be a half or 1 by 6 or 5 by 6। फॉर्मूले हमने दूसरे वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किए हैं, कुछ यहाँ भी डिस्कस किए हैं, और ये a few more। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं तब पी ए प्लस पी बी 1 है, 2 इवेंट ले रहे हैं। और अगर इवन मान लीजिए हम डाई कर रहे हैं थ्रो, तो इवन और ऑड नंबर 3 होंगे उसमें। सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं, तो 3/6 1 by 2 फॉर ऑड एंड 1 by 2 फॉर इवन। 3/6 इज 1 by 2 एंड समेशन इज 1। For any 2 events E and F हैं तो PE minus F will be PE minus PE intersection F। So this is new formula। and यहाँ हम complement की बात कर रहे हैं। E complement F complement का intersection equal to E union F का complement is an event that occurs when neither E nor F occurs। तो E का complement and F का complement and उसका intersection। This is union of 3 events EFG denotes the occurrence of at least one event E, F और G। तो ये याद करने के लिए, और यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो हम फॉर्मूले यूज करते हैं, तो दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन NCR is equal to NCN minus R, NC0 is equal to NC1 is equal to 1, NC1 is equal to N। If NCX is equal to NCY, then either x is equal to y or y is equal to n minus x, that is x plus y is equal to n। Next is NCR plus NCR minus 1 is n plus 1 CR plus NCR upon NCR minus 1, और ये फॉर्म में लिखा जा सकता। तो ये आपको याद करने होंगे, तभी हेल्पफुल रहेंगे। If n is even, then the greatest value of NCR is
NCN by 2. If n is odd, then the greatest value of NCR is NCN plus 1 by 2 or NCN minus 1 by 2. NC0 plus NC1 plus NCN, this is 2 to the power n, and NC0 plus NC2 plus NC4, and these are even along with 0 is equal to, ये odd है, NC1 plus NC3 plus NC5, and this is equal to 2n minus 1. If a pair of dice is thrown simultaneously, मतलब दो डाई एक साथ उछाली गई, find the probability that the sum is obtained 9. तो कुछ वैल्यू पहली डाई पे होगी, कुछ वैल्यू दूसरी डाई पे, and sum is 9. When there is an odd number on the first die, तो दो इवेंट हमारे पास हैं, एक ए से डिनोट करते हैं कि सम 9 आ रहा है, और दूसरी इवेंट बी है जो कि ऑड नंबर ऑब्टेन करने की है फर्स्ट डाई पर. तो 9 किस किस केस में बन सकता है? अगर दो डाई उछाली जा रही हैं, एक पे पहली पे 3 है, दूसरी पे 6, 4 एंड 5, इनका टोटल 9 है. आप देखिए 5 एंड 4 9 एंड 6 एंड 3 9. तो इन केसेस में 9 होता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि पहली डाई पर ऑड हो. तो पहली डाई पर ऑड क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा और 5. 3 पॉसिबिलिटी हैं कि ऑड नंबर हो, और फिर 1 के साथ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड 5 के साथ भी इसी तरह. अब इनका इंटरसेक्शन देखें तो एक तो ये 3 6 है और एक 5 4 है. इसके अलावा 9 नहीं आ रहा है, तो दो ही वैल्यूज हैं. तो n a इंटरसेक्शन b इज 2, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 6 इसकी, 6 इसकी, 6 इसकी, तो 18 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ a व्हेन b अकर्स, मतलब जब b क्या है? ऑड नंबर आ रहा है पहली डाई पर और टोटल जो है 9 हो रहा है, वो तो वैल्यू जो है 18 है. वो पॉसिबल केसेस 18 है. सो इन पॉसिबल केसेस को टोटल हमारा ये सैंपल स्पेस है. सो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी इज 2 अपॉन 18, तो 1 अपॉन 9 इज द आंसर. सो आंसर इज सी. Rakesh and Kisan appear for an interview for 2 vacancies. If the probability of Rakesh's selection is 1 by 3 and that of Kisan's selection is 1 by 5, then find the probability that only one of them is selected. ये 4 options हैं, तो हम ये मानते हैं कि only one selected का मतलब A हुआ और B का नहीं हुआ, B नहीं हुआ, ये एक केस हो गया. या फिर दूसरा केस है बी का हुआ और ए का नहीं हुआ. नहीं हुआ मतलब कॉम्प्लीमेंट. तो इसका पहले का जो पहला पार्ट है, ए का हो गया पी ए एंड बी का नहीं हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट है पी बी बार, प्लस बी का हुआ इंटू पी ए बार, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है. और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? पी ए प्लस पी ए बार इज 1 होता है, तो 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस पी ए इज पी ए बार, 1 माइनस पी बी इज पी बी बार. यहाँ तो वैल्यू दी गई है 1/3 सिलेक्शन की है, तो ये बी के ना सिलेक्शन की है 1 माइनस 1/5, प्लस बी के सिलेक्शन एंड ए के ना सिलेक्शन की, ये सिलेक्ट नहीं हुआ. इन्हें सॉल्व करते हैं. सो दिस इज द आंसर. ये संभावनाएं हैं, 2 संभावनाएं हैं, ए का हुआ, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, मतलब ये अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग है. सो आंसर इज 2/5 विच इज बी. ये दोनों ही इवेंट्स जो हैं पी ए एंड नॉट बी एंड नॉट ए, ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही हैं. तो ये वाला फॉर्मूला होगा इसका, एंड आंसर इज 2/5. 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ईच पर्सन्स performance compared with all others is to be done to rank them subjectively. How many comparisons are needed in total if there are 11 persons? So 2 people कम से कम चाहिए हमें comparison के लिए. So 11C2, 11C2 will be the, and NCR का formula होता है
factorial means 11 upon r factorial, that is 2 factorial, into n minus r means 9 factorial. तो 11 factorial को लिख सकते हैं 11 into 10 into 9 factorial. So 9 factorial जो है कैंसिल हो जाएगा. So 9 factorial cancel. So and 11 into 10 upon 2 is 55. So answer is B. 5 balls of different colors are to be placed in 3 different boxes such that any box contains at least one ball. What is the maximum number of different ways in which this can be done? 2007 का क्वेश्चन है. तो यहाँ 3 बॉक्सेस हैं एंड 5 बॉल्स हैं. तो 2 पॉसिबल केस हो सकते क्योंकि हर एक बॉक्स में बॉल होनी चाहिए. तो ये एक बॉक्स है, ये सेकेंड एंड थर्ड. तो 2 तरह से हो सकती है. हम रखें 1 इसमें, 1 इसमें एंड 1 इसमें, या इसे कहा जाए बेसिकली 3 इसमें एंड 1 इसमें, इसमें 3 एंड देन 1 इसमें, एंड देन सेकेंड हो सकता है 2 इसमें, 2 इसमें एंड 1 इसमें. वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. सो 2 पॉसिबिलिटी हुई बेसिकली 3 1 1 एंड 1 2 2. तो 3 बॉक्सेस में से एक बॉक्स लेना है तो उसके नंबर ऑफ वेज 3, ये बॉक्स के लिए हो गया. और फिर हमें ये लेनी है जो फर्स्ट केस है, दिस केस, इसके लिए हो गया 3, ये तो बॉक्स का हो गया, इनटू अब 5 में से 3 बॉल्स लेनी है. तो 5C3, फिर बाकी बची 2 बॉल्स, इसमें से एक लेनी है, फिर एक बची और वही बॉल लेनी है 1C1. तो जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 3 इंटू फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 factorial into 2 factorial. So 3 factorial cancels out and 5 minus 3 2 factorial means 2 and 2 into 2. So ये हो गया 3 into 10 और 2C1 का मतलब हो गया 2 factorial upon 1 factorial into 1 factorial मतलब 2 and 1 का मतलब हो गया 1. तो ये हुआ 10 into 3 30 into 2 60 हो गया. अब दूसरा केस करते हैं. दूसरे केस में 3 बॉक्सेस 3 तरह से लिए जा सकते हैं. 3C1 इंटू 5 में से हमें 2 बॉल्स लेनी है, इंटू 4 में से हमें 2 बॉल्स लेनी है, 3 में से हमें 2 बॉल्स लेनी है. अब एक बचा तो 1C1, एक में से एक बॉल. सो ये वैल्यू आएगी 3 इंटू 5C2 का मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो हम 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 2 फैक्टोरियल से ये 2 आ गया तो कुल मिला के ये 30 हो गया. 30 इंटू 3C2 इंटू 3C2 का मतलब हो गया 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. सो 2 फैक्टोरियल यहाँ जो 2 फैक्टोरियल ऐसे कैंसिल हो जाएगा. सो इंटू 3. तो अभी तक हमारे पास ये था 3 इंटू 10 इंटू 3 90 हो गया. और ये वाले 1C1 तो 1 ही देगा तो 90 प्लस 60 इज 150. दोनों केसेस को जोड़ लेंगे. सो आंसर इज सी. यहाँ कुछ और फॉर्मूले हैं एंड एग्जाम्पल है. एक टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. अगर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है हमें पी और क्यू थिंग्स के निकालने हैं, चीज़ों के. अगर पी एक जैसी चीज़ें हैं एंड टेकन एनी नंबर एट ए टाइम हम कोई लें, उनमें जो है पी एक तरह की चीज़ें हैं और क्यू दूसरी तरह की, सेम तरह की. सो पी आर अलाइक एंड क्यू आर अलाइक, सेम काइंड. तो जो आंसर आएगा वो p प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस 1 माइनस 1, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 माइनस 1, ये जो है नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे. तो एग्जाम्पल है 4 ऑरेंजेस हैं, 5 पाइनएप्पल्स हैं. यहाँ 2 ही ली गई थी p q. आर थिंग्स भी इसमें जोड़ सकते हैं, मीन्स एनी नंबर ऑफ टाइप ऑफ थिंग्स. और उसमें p एक तरह की है, q एक तरह की है, r एक तरह की है, s एक तरह की.
यहाँ 3 लिए गए, 5 पाइनएप्पल्स एंड 7 वाटरमेलन्स। तो ये एक्सटेंड होता जाएगा फॉर्मूला इन ए फ्रूट बास्केट। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन चूज वन और मोर फ्रूट्स होगा 4 + 1 इंटू 5 + 1 इंटू 7 + 1 -1। तो ये आ जाएगा 5 × 6 × 8 -1 इज 239। तो ये एक नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने का तरीका है जब P एक जैसी चीज है, Q एक जैसी चीज है, एंड से R एंड अदर थिंग्स आर देयर। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n गिवन ऑब्जेक्ट्स जो है 2 to the power n -1 है। ये 2 to the power n लिखा है। For example, the number of ways in which a man can invite one or more of his 5 friends to dinner is 2 to the power 5 -1 means 31. Total number of selection of r consecutive things out of n things in a row है, तब होगा n - r + 1। तो ये फॉर्मूले आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, total ways of selecting 3 consecutive students from a row of 9 students. So 9 - 3 + 1 7 ways होंगे। अब इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं, बट अगर आप इसे ऐसे ही याद करें तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हाउ टू डिराइव देम, दैट पार्ट इज बीइंग ओमिटेड। नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ r consecutive things out of n things along a circle। तो 2 केस होंगे, जबकि r n से छोटा है और जबकि r n के इक्वल है। तो जब बड़ा वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो when r is less than n तो ये n होगा, एंड when r is equal to n है तो 1 ही नंबर ऑफ वेज हैं। For example, total ways in which 9 pearls can be selected from a necklace having 24 pearls is 24, क्योंकि ये 9 is less than 24, so r is less than n तो 24 ways हैं। जैसे कि ऑरेंजेस का क्वेश्चन है, पाइनएप्पल का, तो 4 ऑरेंजेस मीन्स 4 ऑरेंजेस सेलेक्ट कर सकते हैं और वो आइडेंटिकल माने जा रहे हैं, अलाइक। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक 0 का केस हो सकता है कि कोई भी ऑरेंज नहीं सेलेक्ट किया, और +4, तो मतलब ये जो तरीका है ये तरीका एक होगा, तो 4 + 1 इज 5 वेज हो जाएंगे। इसी तरह 5 के लिए, 5 पाइनएप्पल के लिए ये 0 नहीं कोई सेलेक्ट किया तो 6 तरीके हो जाएंगे। अब ये 2 to the power n -1 का है, मतलब कि मैन कैन इनवाइट, तो या तो इनवाइट कर सकता है या तो नहीं, मीन्स 2 आउटकम है। जैसे कि क्वाइन में था हेड एंड टेल, पास एंड फेल, केम और नॉट केम, तो उस केस में 2 तो हो गए, और 5 फ्रेंड्स हैं तो 2 to the power 5 हो गए। अब किसी को भी ना बुलाया जाए तो वो एक तरीका होता है, तो -1 हो गया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ r consecutive थिंग्स हैं, तो उन r को 1 मान लिया गया, तो वो सारी सब्ट्रैक्ट हो गई, और 1 माना गया तो उसे जोड़ लिया गया, तो n - r + 1 हो गया। अब सर्किल का हम लें तो सर्किल में हम 3 और 4 के लिए चेक करते हैं। 3 हमने लिए, अब r को 3 लें तो एक ही तरीका है, और r को 2 लें तो एक तरीका ये हो गया, देन दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। r को 4 ले लें तो 1 2 3 4, तो मीन्स 4 आना चाहिए इसका आंसर। 4 तरीके, एक हमें 3 लेने हैं तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा हम यहाँ से चले, सो 3 ये हो गए, फिर वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, तो 3 ये हो गए, फिर वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, और 3 ये हो जाएंगे, तो 4 तरीके हो गए, तो r = n। टोटल नंबर ऑफ ways in r things are selected out of n identical, तो n आइडेंटिकल है तो एक ही तरीका होगा क्योंकि all of them are identical। और दूसरा, जबकि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 0 और मोर, तो n + 1 इसलिए हुआ कि n तो टोटल है, n आइडेंटिकल है, n आइडेंटिकल है तो n + 1 हो जाएगा। यहाँ r थिंग्स था, यहाँ n 0 और मोर है। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच r थिंग्स आर सेलेक्टेड out of n identical things is 1, and total number of ways in which 0 or more things are selected out of n identical things are n + 1। तो ये फॉर्मूले की तरह आप इन्हें रिमेंबर कर लें। एग्जाम्पल है 2009 का,
In a carom board game competition, m boys and n girls, m is greater than n is greater than 1 of a school participate, in which every student has to play exactly one game with every other student. Out of total games played, it was found that in 2-to-1 games, one player was a boy and the other player was a girl. Consider the following statements. The total number of students that participated in the competition is 30. The number of games in which both players were girls is 78. Which of the statements given above are correct? Only one, only two, both one and two, neither one or two. So here neither one nor two. Here we have m and 2-to-1 games are given m into n. और हम इसके अगर पार्ट्स करें, ब्रेकअप करें तो 17 into 13, इस केस में m is greater than n भी है और m, and if we take here किसी भी गेम प्ले करने को दो स्टूडेंट्स चाहिए तो गर्ल्स हैं 13c2 लें अगर हम तो दिस विल बी 13 into 12 into 11 factorial upon 2 factorial, that is 2 into 13 minus 2 factorial means 11 factorial. So 11 factorial ये कैंसिल हो जाएंगे. अब इस 2 से डिवाइड किया तो 6 and 13 into 6 is 78. So 78 girls are there. So this statement is correct. And total number of students that participated in the competition is 17 plus 13. That is also correct. That 30 are the number of students. So both the statements are correct. Thank you.